तो बच्चों up to last class we have discussed that what are the what is the distribution of the rainfall. In some of the places there is very less or no rainfall, while some another places are there which receive heavy rainfall. कुछ ऐसे प्लेसेज है जहाँ पर ज्यादा रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा रेनफॉल है, like the coastal regions. Some of the places where which receive very less rainfall, scanty rainfall you can say, and such kind of the places experience with the drought. Plants unable to grow there. There is no crop production. Heavy rainfall result into flood and loss of the property, right? Loss of the animals, loss of life. Now conservation of the water. How can we conserve the water? बच्चों, we have seen that only 1% water available to us and only 2.5% water is the fresh water. Plants, animals and human use water present in the fresh water bodies. Clean water is very precious but limited for the use of an ever increasing population. So, due to limited condition, we need to conserve the water. Wastage of water by industries and by big farms is a matter of concern. Water pollution by industrial units is also cause of worry. It is important to adopt the ways to conserve the water through all possible means. जितना हो सके, जैसे हो सके, हम लोग वाटर को कंजर्व करें. सिंपल सी बात है. टेक हाफ वन बकेट फुल वाटर टू टेक बेथ. गाड़ी धोनी है, ऐसे पाइप को स्प्रे करने की जगह पर टेक वन बकेट टू बकेट वाटर एंड clean your vehicle, clean your car with the cloth and water. Recycle the water as much as possible. Checking water pollution. Don't throw garbage in the water. Planting more and more trees. Rain water harvesting. बच्चों, you should learn about the ground water. ये ground water होता क्या है? Is the rainfall over here? The water seepage down in the ground. As the water rainfall over here, the water seepage down in the ground. This water that is seepage down becomes the ground water. और जो water बह करके निकल गया, this is known as surface runway water. That is known as surface runoff water. The water that take away, that move away. The surface runway water is the surface takeoff water is also hazardous to us. It is much harmful to us because it carry the fertile soil along with it. ये जो हमारी fertile soil होती है, इसको लेकर के चला जाता है. That is known as soil pollution. क्या कहेंगे इसको हम लोग? Soil pollution. Now rainwater harvesting. हाउ कैन वी हार्वेस्ट दी वाटर? अब आप लोग कहेंगे सर हार्वेस्टिंग तो एग्रीकल्चर में होती है, हमारे रेन वाटर में कैसे हार्वेस्टिंग होने लगी? बच्चों, वी कैन डू ऑल्सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वेरियस वेज. कंजर्व दी वाटर. So look here, rainwater which falls on a concrete surface like the road, rooftops, flows into the drains. Flows into drain. पानी बह करके drains में चला जाता है. From there it is carried away with the into lakes, rivers. और ये पानी rivers में, lakes में चला गया. Loads of efforts are put bring this water to our home for use.
कई बार कोशिश की गई कि जो लेक का वाटर है हम लोग यूज कर लें, जो रिवर का वाटर हम लोग यूज कर लें, बट बच्चों एक बार जो चला गया सो चला गया. It causing overflow of the rivers. One way to dealing with this problem is the rainwater harvesting. क्या करते हैं बच्चों? मार्केट ऑनलाइन व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. A simple technique by which we can guide the rainwater through bore pits or wells to reach the underground. जो रेन वाटर है उस रेन वाटर को हम लोग कहाँ डाल दें? नीचे जमीन में डाल दें. नीचे जमीन का रास्ता उसको दिखा दिया था. टू गाइड दी वाटर टू दी अंडरग्राउंड. और ये अंडरग्राउंड दिखाने का रास्ता कैसे दिखाया जाए? तो बच्चों थ्रू दी वेल्स, थ्रू दी पिट्स, खड्डे खोद करके या कुएं खोद करके, या फिर थ्रू दी बोरवेल्स. हाउ कैन वी डू, हाउ शुड वी डू दिस? ब्रिंग दी लेवल ऑफ, अब इससे क्या होगा? रेन वाटर गोज इनटू द ग्राउंड and later on we use the groundwater in various ways like the tube wells, right? सबके घरों में हमारे ट्यूबवेल लगाई है. The method of rainwater harvesting are the, अब क्या क्या कर सकते हैं बच्चों? तो नंबर 1 रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. यू लुक इन योर बुक पेज नंबर 158. दिस इज द डायग्राम गिवन इन योर बुक. क्या किया? जो छत का पानी है सारे के सारे पानी को कलेक्ट कर लिया और कलेक्ट करके एक यहाँ पर ऐसा टैंक बना दिया जाता है. उस टैंक के थ्रू जमीन के अंदर उसको डाल दिया जाता है. दिस वाटर गोज इनटू द ग्राउंड. सो rooftop rainwater harvesting. In this method, rainwater from the rooftop is collected through the pipes in a storage tank or deep pit into the ground. एक काफी गहरा गड्ढा कर देंगे और उसके अंदर डाल देंगे. Market line. In this method, rainwater from the rooftop is collected through the pipes in storage tank or deep pit in the ground. Water in storage tank can be used for daily use. अब ये जो वाटर है दिस या तो हम लोग टैंक में डाल दें ताकि दिस वाटर कैन बी यूज फॉर डेली पर्पजेज, फॉर वॉशिंग व्हीकल्स, वॉशिंग फ्लोर्स, या फिर पिट के अंदर डाल दिया तो इट विल रिचार्ज दी अंडरग्राउंड वाटर. तो ये हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर देगा. इससे क्या फायदा होगा बच्चों? दी आर ट्यूबवेल विल नॉट फेल. देखो प्रतापनगर साइड में पूरे के पूरे ट्यूबवेल जो है फेल हो गए हैं. क्यों फेल हो गए? बिकॉज पीपल यूजिंग दी वाटर बट डू नॉट रिचार्ज दी वाटर. तो जितनी भी अभी बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जितने भी, अपने स्कूल में भी देयर इज एन प्रोविजन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नीचे लिखा हुआ भी है, अगर कभी देखा हो तो यहाँ पर अपने जो गेट है, गेट के पास में जो अपना गार्डन है, गार्डन पे बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, देयर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग चैनल. तो बच्चों जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है दे विल हैव टू प्रोविजन ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इट इज कंपल्सरी फॉर देयर taking the license or authority to construct the building. Water from the deep pit seeps into the ground and eventually increase the level of groundwater. Now next one, ये देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ऐसे हम लोग यहाँ पर पिट बना दिया करते हैं और पिट बना करके नीचे उसको पानी जो है सोइल के अंदर चला गया. रेन वाटर हार्वेस्टिंग थ्रू दी ड्रेन्स. अब बच्चों ड्रेन के थ्रू हम लोग यूज करते हैं रोड साइड वाटर हार्वेस्टिंग. क्या कहते हैं इसको? रोड साइड वाटर हार्वेस्टिंग. जो बड़े बड़े अपने यहाँ तो नहीं है. व्हेन आई वाज इन नागपुर बच्चों मैंने देखा कि वहां पर हमारे यहाँ पर देखो थोड़ी बरसात आएगी पानी थोड़ा पूरा भर जाएगा. आई वाज इन पानीपत और पानीपत में मैंने देखा कि वहां पर जैसे ही थोड़ा, आई थिंक इट वॉज द टाइम ऑफ मई जून, उस टाइम पे थोड़ी सी बरसात हुई कि मुझे पता है मेरे काम पे जाने के लिए
कम से कम मुझे घुटने से ऊपर पानी में ऊपर निकलना पड़ता था। इट वॉज टू हार्श कंडीशंस। चाय खुद बनाता नहीं, बाहर रहते थे, तो चाय की होटल तक भी जाने, इट इज वेरी पेनफुल वर्क। क्यों? क्योंकि वहां पर जो पानी था, पानी इतना ओवरफ्लो होता था और सारा का सारा पानी आकर कॉलोनी का वहां पर आकर डिप्यूट हो गया। अल्टीमेटली इट कोजेज दी फ्लडिंग कंडीशन, और पानी भर जाएगा, डर्टी वाटर इज देट। तो बच्चों, वी कलेक्ट दी रेन वाटर, रोड साइड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। लुक हियर, roadside drains collect rain water. This water can be allowed to go directly into the ground through pipes to the aid to the ground level. अब ये पाइप्स के थ्रू यहाँ पर ग्राउंड के अंदर डाल देंगे। लुक हियर, ये पाइप है, प्लास्टिक सीमेंट पाइप है, इसके अंदर छेद कर दिए गए हैं। In fact, the Delhi Jal Board has special rainwater harvesting cell which assist any individual or organization इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड हो वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप देयर ओन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बच्चों, इट इज वेरी डिफिकल्ट कंडीशन इन तो बच्चों, दिस वाज द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ, वाटर इज अ प्रीशियस रिसोर्स एंड मस्ट बी यूज्ड जुडिशियली। एक एक बूंद पानी बचाना पड़ेगा। You should also try and avoid wastage of water in your home, in your school, in your neighborhood। तभी तो सर कहते थे कि जो है तुम लोग पानी की बोतल भर के लाए हो, पूरी बोतल धो दे, यहाँ पर ऐसे ढोल दोगे तो पूरा पानी खराब हो गया। ड्रिंक जितना पानी लिया है, यू शुड यूज दिस वाटर। अब ठंडे पानी के चक्कर में वहां पर जाएंगे फ्रिज के पास, पूरा पूरा पानी फेंक करके आ जाएंगे। So you should use this water. Number one, how can we conserve the water? Along with the rainwater harvesting, what are the other methods? Avoid wastage of water in your house and recycle it whenever possible. जितना ज्यादा हो सके उतना रिसाइकल कर ले। घर में पोछा लगाया, थोड़ा गंदा पानी है, उसको हम लोग अपने उसमें हमने सर्फ या कोई क्लीनर नहीं डाला है, तो वी कैन यूज दिस वाटर टू गिव दी प्लांट्स। जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को हम लोग वाटर दे सकते हैं। प्लांट ट्रीज टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम दी सॉइल, ताकि वाटर लेवल नीचे ना चला जाए। प्लांट्स की रूट होती है, दे एब्जॉर्ब दी वाटर, दे पूल दी वाटर। ये एक ऐसी मशीनरी है जो वाटर को ऊपर से पूल करती है। It pull the water upward, so it prevent the reduce of water level. This increases the level of groundwater as rainwater seeps more into the soil which has plants. Pollution of water should be checked. Pollution of water should be checked by treating the contaminated water of factories and sewage before डिस्पोजिंग इट इनटू दी रिवर। बच्चों, रिवर्स में डायरेक्ट फैक्ट्रीज का पानी रिवर्स में न डाला जाए। बिफोर पोरिंग इनटू दी रिवर्स वी शुड ट्रीट दी वाटर। वाटर को ट्रीटमेंट दे देना चाहिए, ताकि वाटर जो है हमारे जो वाटर है उसको खराब ना करे। नाउ लुक एक्सरसाइज, थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग एक थोड़ा सा पोर्शन रिवीजन कर लेंगे। नाउ लुक हियर, अबाउट हाउ मच परसेंट वाटर ऑन द अर्थ? कवर्ड अबाउट 70%। तुम लोगों को मैं अनम्यूट कर देता हूं, सो यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन दी कन्वर्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स यूज वाटर फॉर प्रोसेस ऑफ दी जर्मिनेशन, राइट? पोलिनेशन के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती। वाटर रिटर्न्स टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। रेन वाटर, हाँ, रेन स्नो बोथ डे एंड नाइट।
Process of conversion of water into water vapor by heating is known as evaporation. ये कौन आ गया भाई दुष्ट? ये पता नहीं कौन दुष्ट घुस गया. Next, insufficient rainfall may lead to the drought. Next one. तो बच्चों insufficient rainfall may lead to the drought. More vegetation will lead to the increased water table. Water table ऊपर आ जाएगा, increase हो जाएगा. Next one, removal of dissolved salt. यहाँ पे क्या लिख देंगे? dissolved salt. चलो ये बाद में कर देंगे, ठीक है. चलो बच्चों, shadow color will be black. In all cases, shadow color will be black. Now put C for clear or transparent, F for frosty or translucent, O for opaque. तो OC CFO क्या फिल करना बच्चों हमको? CFO. फेविकोल, can you see around the fevicol, across the fevicol? No. So फेविकोल is opaque object. क्या लिख दोगे? O. Clear glass, clear water and clear water is transparent. Clear water is transparent. Glass और glass का glass water transparent. क्या लिख देंगे? C. तो पहले में लिखा O, second C, third C. Butter paper, all of you well known. Butter paper is the translucent. Butter paper is the translucent F. Frosty. Bulb, वो जो बल्ब का ग्लास होता है बच्चों, बल्ब ग्लास we can see across it, so it is transparent. Bulb is the transparent. C लिखेंगे यहाँ पर. प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट जो है नॉर्मल, दिस इज द प्लास्टिक शीट. दिस वन प्लास्टिक शीट में भी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक. लेकिन नॉर्मल प्लास्टिक के बारे में हम कहेंगे तो हम कहेंगे इट इज ओपेक. प्लास्टिक शीट इज द ओपेक. सो यू विल राइट ओवर हियर O. Now leaf, we can't see across the leaf. Leaf is the opaque object. Your notebook, this one your notebook, and this is opaque object. O. Glue, glue जो होती हैं, ग्लू में भी, अब देखो बच्चों, ग्लू थोड़ी सी वाटर जैसी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ा ग्लू डाल दिया है तो वी कैन सी अक्रॉस इट. तो क्या कहेंगे इसको? ट्रांसल्यूसेंट. फ्रोदी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? F. ग्लू इज दी F. नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी के क्रॉस में कोई देख नहीं सकता, क्या कहेंगे? O. ओपेक. हनी, हनी अगेन बच्चों, हनी हम लोग क्या कहें? हनी को ट्रांसपेरेंट तो नहीं होगा, इट में भी ओपेक और इट में भी ट्रांसल्यूसेंट. तो व्हाट विल बी द आंसर ओवर हियर? ट्रांसल्यूसेंट गए थे, तो यहां पर हनी के लिए आ जाएगा F. हनी F. नाउ फ्लोरोसेंट सीट. बच्चों जो फ्लोरोसेंट सीट होती है, इट इज ऑल्सो, जो सीट होती है ना फ्लोरोसेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट. तो क्या हो गया? OCC F C OOO F O F F. क्या हो गया? लास्ट है F. ठीक है बच्चों, एनी कंफ्यूजन? Sources of light may be of two types: natural sources and man-made sources. Natural sources
sun, stars, moon, fireflies. Sun, stars, moonlight, and fireflies. These are the जुगनू जिसको हम लोग कहते हैं. These are the natural sources of light. Now, man-made sources of light. Man-made sources of light: tube light, candle, earthen lamp, candle, ट्यूब लाइट, अर्दन लैम्प. जो क्वेश्चन दिए थे वो ऐसे ही क्वेश्चन थे, राइट. नाउ देयर मे बी ऑफ टू काइंड ऑफ दी सोर्सेस. नंबर वन, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और सेकंड वन, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. Luminous objects and non-luminous objects. There are some of these objects which can emit their own light. अब वो नेचुरल हो, मैन मेड हो, दैट इज सेकेंडरी. These sources which can emit their own light known as natural sources. ठीक है, तो ये हो गए नेचुरल सोर्सेस. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्यूबलाइट, अर्दन लैम्प, कैंडल, दे इमिट देयर ओन लाइट, खुद की लाइट को इमिट करते. सन, stars, but some of the object which do not emit their own light, they only reflect light. लाइट गिरी, वहां से रिफ्लेक्ट हुई. यू आर लुकिंग सम शाइनिंग अपीयरेंस बिहाइंड मी. इज दिस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? नो, इट इज रिफ्लेक्टर. दिस द वॉल रिफ्लेक्ट द लाइट ओनली. जो बाहर से लाइट आई है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रही है. तो सच काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट्स which reflect the light are known as non-luminous objects. Non-luminous object, moon, planets, they only reflect the light that expose over them. Cloth, furniture, we are able to see different objects. You are also able to see me. Why? Due to the light, reflection of light. All the bodies reflect a particular light.